don't sleep night on two. I feel the wind blowing my face, but that's alright. Oh my god, this is so embarrassing. Embarrassing what? The embarrassing stage moments which no one talks about. Why does no one talks about embarrassing stage moments? We celebrate speeches, certifications, and applauses, but no one talks about the moment you get on the stage, you start forgetting those lines. You get that awkward feeling and just want the ground to swallow you. Oh my god. You know what? If embarrassment burned calories, my stage moments would have made me an athlete. Not kidding. So here I am sharing the most embarrassing moments I have experienced on the stages and in front of the classrooms in my school and college. So let's go. First, let's talk about the school life. From 1st to 10th, I was a girl who participated in everything: solo dance, music, inter-house competitions. I was also the part of the cabinet team of the school. I was doing everything. Everything was going fine. Even in lockdown, I was okay-ish. Okay, everything was going good till 11th came. My energy just shifted. I have never seen a person like that. I'm telling you, I was not that person which I was in 11th class. In 12th also, I was little bit on a good level, but in 11th, it was a game over for me. Just putting mask on my face, staying at my desk, just doing work or just doing nothing, not speaking to others, not participating in the class, because I was from science stream and you know the pressure going on. In 11th and 12th we had English assessments. Okay, तो mostly मेरे एक दो अच्छे गए थे और वही एक दो मुझे याद हैं अच्छे से कि एक बुक्स वाला टॉपिक था और एक में कहानी सुनाई थी, तो आई वॉज अप्रिशिएटेड बोथ ऑफ द टाइम्स. ठीक है, बाकी जो हुए असेसमेंट्स उसमें क्या सीन चला था कि मेरे को इंट्रोडक्शन याद है एंड आई नो द एंडिंग. I don't know the content. As soon as I get up from my seat and went in front of the whole classroom, I just forget my content. I know the introduction, I know the dramatic ending I have to give, you know, quotes and all or whatever. So वो तो मैं दे देती थी. अब यहाँ पर थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था कंटेंट वाले एरिया में. Now I'm feeling nervous right now as well, but anyways, let's just calm down. So जब मैं जाती थी स्टेज पे कुछ मतलब क्लासरूम पे स्टेज पे कुछ भी बोलने, तो सबसे पहले माई ब्रेन गेट्स ब्लैंक्ड. मैं सब भूल गई. आई फॉरगॉट एवरीथिंग. मैं टॉपिक ही भूल गई. मतलब अभी तो मैं आ रही हूँ चीज़ों पे जो मैं भूली हूँ. ठीक है, तो मैं सब भूल गई. उसके बाद मेरा हार्ट रेस नहीं कर रहा, ड्रॉप डाउन कर रहा है. आई कैन like listen each and every beat slowly and heavily. It was just so irritating. My legs and hands were so cold. My legs were numb, they were shaking, and I just looked like dumb and not confident. And that was the thought that was coming to me each and every time, that bro नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं. छोड़ो भाई, नहीं हो ही नहीं पाएगा. लाइक करके भी क्या ही हो जाएगा, छोड़ो. दिस ऑल हैपेंड इन द स्कूल और मुझे तो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा था, बट मुझे बहुत लर्निंग्स भी आई थी कि ओके दिस इज़ द टाइप ऑफ ब्लंडर्स आई डू. ठीक है, तो मैंने ये सब देखा. चलो स्कूल में हो गए, जितने असेसमेंट होने थे सारे हो गए, दे दिए. अब किसी को याद है नहीं है मुझे नहीं पता. कम्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, आई पार्टिसिपेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन जो मेरी सोसाइटी की तरफ से ही था. ठीक है, तो सबसे पहले तुम ये वीडियो देखो. बल्कि चुनाव प्रणाली में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है. मेरा नाम याशिका शर्मा है और मैं हिंदी में अपना बोलने वाली हूँ. मैं कॉलेज की छात्रा हूँ. सबसे पहले देखा जाए तो चुनाव प्रणाली में
कई चीज़ें हैं। और सबसे पहले हम देखें तो अगर चुनौतियों का सामना देखें कि अगर हम ये नीति लाते हैं तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो इस देश में कोई भी नीति आए तो सबसे पहले लोग लाल झंडा दिखाने लग जाते हैं। बिना सोचे समझे हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, बिना सोचे कि यह देश के विकास के हित में है या नहीं। तो सबसे पहली चुनौती है अर्थव्यवस्था की। हर महीने इस देश में चुनाव होते रहते हैं और अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जैसे देखा जाए तो 2019 में जनरल इलेक्शन में 75 दिनों के अंदर 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। क्या ये पैसा अस्पतालों और देश के विकास में नहीं यूज होना चाहिए था? ये एक शर्म की बात है कि हमारा देश इन्हीं चीजों में लगा रहता है और देश के विकास के बारे में सोच ही नहीं पाता। अगर दूसरी चीजें देखी जाएं तो अगर दो पार्टियां होंगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर दो पार्टियां हैं और दोनों पार्टियों के अलग अलग विचार हैं, तो अलग विचार होंगे तो लोगों की अलग सोच होगी, और अलग सोच होगी तो भारत एक कैसे होगा? जब तक भारत एक नहीं होगा तो एक चुनाव कैसे हो पाएगा? हमें नई नीतियां लाने से पहले चुनाव के बारे में भी सोचना चाहिए। किसी चीज को गलत या सही ठहराने से पहले उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। अगर हम ये नीति लाते हैं तो 1.5% GST का बढ़ोतरी हो सकती है। ऊपर से जब हमने सर्वे दिया तो 75 से 80% लोग इसके साथ खड़े हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? क्यों लोग इस पर इतने टाइम से अपना समय व्यतीत करे जा रहे हैं? 2024 में पूरा विंटर सीजन इस टॉपिक के बारे में ही चला गया। मेरा बस यही कहना है कि अगर सरकार दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान दे तो देश का विकास हो सकता है, क्योंकि एकता से ही शक्ति है और शक्ति से ही प्रगति। धन्यवाद। इस कंपटीशन में सिलेक्ट होने के लिए हमें सबसे पहले एक ऑनलाइन वीडियो देनी थी, जिसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी ऑफ कोर्स। तब जाकर मैं इस कंपटीशन में आगे वाले स्टेज में गई, जो कि था डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। तो व्हाट वाज दैट, मुझे पता ही नहीं था मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मुझे मेरी एक दोस्त मैसेज करके लिख रही है कि भाई यू हैव बीन सेलेक्टेड, वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मतलब ऐसे मुझे लगा मैं एक वॉलंटियर हूँ जो मतलब संभालूंगी इवेंट को, बट आई वॉज द वन गेटिंग सेलेक्टेड एंड आई वॉज द पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो वो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा था। एंड देन आई थॉट ओके, मेरे पास एक दिन ऑलमोस्ट बचा है बस, एंड मुझे ये समझना भी है। मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है टॉपिक के। जो हमारा टॉपिक था 1 नेशन 1 इलेक्शन, एंड मतलब मुझे काफ़ी इसके बारे में रिसर्च करनी थी। सो आई ऑल्सो थॉट टू वॉच अ यूट्यूब वीडियो, बट पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखी, बहुत चीज़ें बहुत गूगल करा। इट केम द डे ऑफ कंपटीशन, तो आई वेंट, मैंने एंट्री करवाई अपने कॉलेज में, मेरे ही कॉलेज में हो रहा था। तो मैंने एंट्री करवाई, आई वेंट टू द ऑडिटोरियम। ठीक है, वहाँ पर मैं बैठी आराम से, एंड आई एम सो नर्वस। फिर मेरे कुछ कलीग्स आते हैं एंड ऑल्सो मेरे सीनियर्स आते हैं मुझे समझाने के लिए कि ओके तुम कर लोगे, ज़्यादा टेंशन मत लेना, और बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे से पहले ना एक दिन और हो चुका था जहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, तो डे 1 था, डे 2 था, तो मेरा डे 2 पे नंबर था। ठीक है, मुझे डे 1 पता लगा था, शायद डे 1 के अराउंड ही पता लगा था, और उससे थोड़ा पहले डे 1 की रात को दे टेल, ऑलमोस्ट रात के अराउंड ही मुझे पता लगता है कि भाई यू कांट टेक स्क्रिप्ट्स देयर। ठीक है, स्क्रिप्ट अलाउ नहीं कर रहे हो, और अगर तुम ले जा रहे हो तो उसके नंबर कटेंगे। ठीक है, अब जो मेरा कंपटीशन था वो था टाइम बेस्ड, कि आई थिंक 1 मिनट का, एक 1.5 मिनट का था आई गेस। तो उतने में मैंने टाइम बाउंड पे ही बंद करा था अपना, मतलब मेरा सब कुछ सही हो रहा था। जो मेरा गड़बड़ हुई वो मेरे इंट्रो में गड़बड़ हुई है। आई फॉरगॉट कि मैं इंट्रो क्या दूँगी, क्यों, बैक स्टोरी। सीनियर्स वगैरह ने मुझे गाइड वगैरह एंड ऑल कर दिया। ठीक है, नाउ आई एम लर्निंग। ठीक है, मैं सारे बच्चों को देख रही हूँ, सब लोग बहुत लाइक अच्छे कॉलेजेस के भी आ रखे हैं। ठीक है, और बढ़िया कॉलेजेस के भी थे वहाँ पर, और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। ठीक है, मुझे तो मतलब मुझे जितने दिख रहे थे वो सारे कॉन्फिडेंट ही लग रहे थे। बट ठीक है, मैंने अपने आप पर ध्यान दिया कि नहीं, अभी इधर उधर नहीं देखते, अपनी चीज़ पर ध्यान देते हैं।
देन अनाउंसमेंट होती है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन, एंड सडनली द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इज याशिका. Oh my god, I was looking at my seniors in such a disappointment, like अगर मतलब why is my name on the very first of the list? I don't know, maybe हो सकता है नंबरिंग की वजह से मेरा नाम पहले आ रहा हो, बट why? I was totally not ready for it. मेरा नाम अनाउंस हुआ एंड अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अपनी स्क्रिप्ट रखी, मैं स्टेज पे उठ के ऐसे चली गई, ठीक है. एंड आई वॉज, जैसे जैसे मैं जा रही हूँ मेरी मेमोरी पीछे पीछे जा रही है, सब इरेज हो रहा है, मैं आगे जा रही हूँ, सब इरेज हो रहा है पीछे. उसके बाद मैं गई, आई एम लाइक, जो तुमने देखा वीडियो में, इंट्रो भूल गई, ठीक है. मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं अपना नाम भी भूल रही हूँ, मैं कॉलेज का नाम भी भूल रही हूँ, मैं एक टॉपिक का नाम भूल गई, शायद वो भी था उसमें. एकदम से मैंने अपने आप को गैदर करा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, तुम हार नहीं मान सकते. मुझे बस ये पता था कि भाई अब तो हो गया बर्बाद, इंट्रो बर्बाद हो गया, तो मतलब तुम वैसे ही हट गए हो, बट अब तुम अपनी एम्बैरसमेंट करा के वहाँ से वापस नहीं आ सकते, ठीक है. यू हैव टू स्पीक समथिंग. सो आई वाज लाइक, इंट्रो भूल गई, फटाफट इंट्रो याद करा, कुछ भी बोला, कंटेंट याद आ रहा है. क्यों कंटेंट याद आ रहा है? क्योंकि मैंने पहला वो अपने आप से खुद से बनाया था, तो मुझे अपनी खुद की लाइन याद आ गई. और अगर मुझे पहला सेंटेंस याद आ जाता है, मुझे ऑलमोस्ट कंटेंट याद आ जाता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी. आई न्यू अबाउट द टॉपिक. मैंने इसकी सारा डेटा एनालिटिक्स वाली चीज़, इसकी मतलब सारा डेटा पढ़ा था, नंबरिंग्स पढ़ी थी, ठीक है, क्या डेटा निकल कर आ रहा है इसके बारे में मैंने सारा पढ़ा था, और वो सारा डेटा मैंने अपने वीडियो में देखा, बोल दिया. मैंने एंडिंग भी बढ़िया करी. नाउ मैं वापस आई एंड एवरीवन वाज सेइंग कि भाई तूने अच्छा करा है. आई वाज लाइक नहीं, मैं भूल गई, मैंने इतना ब्लंडर कर दिया स्टार्ट में. एवरीवन वाज लाइक इतना पता नहीं चला, फिर मैं कितनी दिक्कत ले रही हूँ. ये तो चीज़ है कि तुम कभी फुली प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकते, ठीक है. तो तुम्हें जैसे तैसे अब जो याद है नहीं याद है, यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट एंड कुछ भी बोलो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. थैंक गॉड मेरी एक फ्रेंड ने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, और उस वीडियो से ही मैं खुद को देख पाई कि हाँ मैंने एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है, क्योंकि खुद की मेमोरी से इतना याद नहीं रहता, बहुत घबराए हुए होते हो उस वक्त, ठीक है. सो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ. सो पहली है रिकॉर्ड वीडियो इफ़ एबल टू, ठीक है, ताकि तुम अपने आप को ट्रैक कर सको. जब भी आप किसी भी कंपटीशन में जाओ, कोशिश करो आप अपने आप को किसी से रिकॉर्ड करवा लो. इट विल बी सो हेल्पफुल टू यू. तुम देख पाओगे तुमने कैसा एक्चुअल में परफॉर्म करा है, तुम कहाँ अटके हो. सो या सेकेंड इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर. सब यही कहते हैं एंड आई थिंक आई रियली अग्री ऑन इट. मिरर के सामने प्रैक्टिस करना इज़ रियली गुड. तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज देख पाते हो, तुम अपनी स्पीकिंग स्किल्स देख पाते हो, तुम देख पाते हो कि तुम बिना स्क्रिप्ट के कैसे बोल रहे हो, ठीक है. थर्ड टिप इज सी वीडियोस एंड गैदर कंटेंट. वीडियोस देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वीडियो की वजह से जो मैंने यूट्यूब पर देखी थी, आई हैड सो मच इन्फो विद मी कि मैं कुछ उसके बारे में, टॉपिक के बारे में अलग से बोल सकूँ, कि अगर मैं कुछ भूल भी गई तो आई नो अबाउट इट, ठीक है, कि मैं उसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकूँ, ठीक है. सो यूट्यूब वीडियोस आर अ गुड थिंग. फोर्थ, बी फैमिलियर विद द टॉपिक. ऑफ कोर्स वही मैंने बताया कि फैमिलियर हो जाओ टॉपिक से, ताकि अगर तुम भूल भी जाओ तो तुम कम से कम कुछ तो बोल पाओगे. फिफ्थ टिप इज डोंट ओवर थिंक वाइल गोइंग टूवर्ड्स द स्टेज. जब तुम स्टेज की तरफ जा रहे हो, तुम अपने आप को नीचे मत देखो, एक तो ठीक है, सामने देखो, ऊपर देखो, और बी वेरी कैजुअल, ठीक है. अपने शेक योर आर्म्स, लाइटन योर शोल्डर्स एंड नेक, एंड जस्ट थोड़ा चिल पिल लो, ठीक है. कोई यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर इट कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस अपनी बातें वहाँ रखनी है, दैट्स इट. सिक्स्थ थिंग इज टेक योर टाइम. अगर कोई बाउंडेशन नहीं है टाइमिंग की, जैसे कंपटीशन में वैसे तो होती है, बट आई थिंक उसमें भी टेक योर टाइम,
ठीक है, आराम से बोलो, एक स्लो स्टार्ट दो और फिर रैपिडली बढ़ाओ। स्लो स्टार्ट क्यों दो? क्योंकि थोड़ा डर लगता है स्टार्टिंग में, नर्वसनेस होती है फॉर दोस्त जिनको होती है। बाकी जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो तो एकदम से बोल ही देते हैं, बट जो नर्वस होते हैं, आई जस्ट गिव यू अ टिप कि स्लो स्टार्ट करो, बाकी में फटाफट पेस कर लो। 7th टिप इज गो फॉर मोर स्टेज टॉक्स। जितनी तुम स्टेज टॉक्स दोगे, आई थिंक इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो ये जो भी मोमेंट्स थे मेरे इन स्कूल एंड इन कॉलेज, स्पेशली कॉलेज वाला जो मोमेंट था, उसमें मैंने ये पॉजिटिव चीज़ गेन करी है कि अपने बारे में, कि मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करा उस मोमेंट पे जब मैं इंट्रो भूल गई थी। ठीक है, मैंने उस चीज़ से बैक ऑफ नहीं करा, मैंने बस वो कहा जो मुझे याद था, मुझे अपना कंटेंट याद था, मैंने बोल दिया। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप अपना इंट्रो भूल गए तो आप आगे की चीज़ें नहीं बोलोगे, लाइक भाई अब तो ब्लंडर हो ही गया, आगे क्या ही करना बोल के अब तो छोड़ो। नो ब्रो, लाइक सीरियसली तुम्हें बोलना है, तुम खुद के लिए बोलो, तुम अब कंपटीशन के लिए मत बोलो, तुम खुद के लिए बोलो। तुम वहाँ स्टेज पे गए और तुम बिना बोले अगर आ गए, सो आई थिंक दैट वुड बी मोर एम्बैरेसिंग। तो यू हैव टू स्पीक समथिंग, चाहे तुम थोड़ा सा ही बोलो, 5-6 लाइन बोल लो, या अपना ओपिनियन शेयर कर दो। तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट नहीं याद तो दैट्स व्हाई आई गेव यू दैट टिप कि तुम्हें फेमिलियर होना पड़ेगा टॉपिक से अगर तुम जिस भी बारे में बोल रहे हो। ठीक है, सो दोज मोमेंट्स एम्बैरस मी फॉर अ फ्यू मिनट, but they taught me confidence for years. So if you are afraid of embarrassing yourself, remember this: people forget your mistakes much faster than you do. That's the ultimatum. तुम्हारी स्पीचेस, बातें कोई इतना कुछ खास याद नहीं रखता, तुम ही ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके उनको और टफ बना देते हो अपने लिए। ठीक है, तो डोंट गो दैट साइड, सी द पॉजिटिव आउटलुक एंड उन चीज़ों से सीखो। कोशिश करो तुम वो चीज़ें रिपीट ना करो बार बार। ठीक है, रिपीट करना भी गलती नहीं है, बिकॉज हैबिट्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, नर्वसनेस इतनी जल्दी नहीं जाती, एंशियसनेस, ठीक है, स्टेज फियर, इतनी जल्दी ये सब नहीं जाता। ठीक है, आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, दिल से बोलना पड़ेगा, दिल से चीज़ें बतानी होगी और ओपिनियंस रखने पड़ेंगे, एंड इट विल मेक इट लुक मच ईजियर। ठीक है, सब वहाँ पर रट के आ रहे हैं या जो भी करके आ रहे हैं, आई डोंट नो, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, और तुम भी अपना बेस्ट दो। While making this video, I had this written thing with me ताकि मैं अपने पॉइंट्स ना भूलूँ। देखो, सपोर्टिंग मटेरियल हमें चाहिए होता है, जो नर्वस होते हैं ना, अगर हमें थोड़ा सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाता है तो थोड़ा हम ईज आउट हो जाते हैं, बट स्टिल अभी भी इट्स वेरी टफ फॉर मी कि मैं ऐसे बोल पा रही हूँ। आई थॉट कि मुझे इंग्लिश में वीडियो बनानी चाहिए, बट आई थिंक नहीं, जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें फैमिलियर फील हो रहा है, एंड जिसमें तुम अच्छे से अपने वर्ड्स दूसरों तक पहुँचा सकते हो, आई थिंक यू शुड गो विद दैट। नाउ आई होप आप अपनी एम्बैरसिंग मोमेंट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दोगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू मच इन इट। आप उनसे कुछ सीखोगे, अपनी हैबिट्स चेंज करोगे। ठीक है, एंड और स्टेज टॉक्स करोगे, पब्लिकली बोलोगे, ठीक है, चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे, एंड दैट्स व्हाट वुड हेल्प यू ग्रो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक बहुत लंबी होगी, आई डोंट नो, बट thank you for hearing me and lending me your ears basically. So yeah, thanks for watching.